मैं तेरे दर्द ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਤੱਕ ਦੇਖਾਂ ਤੇ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਨਕਲਾਬ ਤੱਕ ਦੇਖਾਂ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਸ ਵੀ ਦੇ, ਮੈਂ ਉਗਦੇ ਬੀਜ ਨੂੰ ਖਿੜਦੇ ਗੁਲਾਬ ਤੱਕ ਦੇਖਾਂ। ਤੂੰ ਕਾਲੇ ਚਸ਼ਮੇ ਨਾ ਲਾਹੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਰੀਝ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨੈਣ ਤਾਂ ਕੀ ਤੇਰੇ ख्वाब ਤੱਕ ਦੇਖਾਂ। ਮੈਂ ਪਾਏ ਪੂਰਨੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਤੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਤਲੇ ਅੱਖਰ ਕਿਤਾਬ ਤੱਕ ਦੇਖਾਂ ਤੇ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਨਕਲਾਬ ਤੱਕ ਦੇਖਾਂ। ਪਾਤਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਹੀ ਹਾਰਦਿਕ ਅਤੇ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਓ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਇਸ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੇ ਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਵਿਆਹ ਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਤੇ ਕੁੜੀ ਕੋਲੋਂ ਉਹਦੀ ਸਹੇਲੀਆਂ ਪੁੱਛ ਬੈਠਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਕਿਹਨੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ? ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਉਹ ਕੀ ਆਖੇ। When the friends of the bride gather around her after the joy of the wedding, they ask, who has sent her so far away? She looks down sorrowfully because she has no answers. के
Looking for high-quality, fully customizable windows and doors for your next project? Come visit Durabuilt Windows and Doors, where it's all about you. We value service, style, and innovation, and we'll work closely with you to help your vision come to life. With 2 convenient locations in Edmonton, our team will ensure your new windows and doors encourage friends and neighbors to take notice. Visit a design gallery today or schedule an in-home consultation. Call us at 1-800-544-3815 or visit our website at durabuiltwindows.com. ਗੋਲੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹੋਗੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਵੀ ਲੱਭੋਗੇ? ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਚੁੱਕਾ ਆ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਆਇਆਂ ਨੂੰ 6 ਟੈਕਸ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਟਰਾਈ ਕਰ ਲਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਰਹਿ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਨਵੇਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਪਰਪਸਸ ਲਈ ਸਿਰਫ KP ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਆ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਡ। Are you satisfied now? It's more than enough. Kapil ji, you're the best. KP Accounting and Tax Services provides best results for tax preparation, bookkeepers, payroll, GST return, business advisory, and best specialist tax consultant in Edmonton. Contact KP Accounting and Tax Services, 9133 35 Avenue Northwest, Edmonton, Alberta. Phone number 780-469-2677. ਗ੍ਰੇਟਰ ਐਡਮੰਟਨ ਰੀਜਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦਣੀ ਜਾਂ ਵੇਚਣੀ ਹੈ, ਲਾਟ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਲਡਰ ਤੋਂ ਘਰ ਬੁੱਕ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਾਰਗੇਜ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਏਜੰਟ ਹਰਜੀਤ ਸੰਧੂ ਨਾਲ 7802333100 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। Your real estate connection, harjeetsandhu.com. Harjeet Sandhu, an award winner realtor, is great detail-oriented communicator, problem solver who will do the best for you for his negotiation skills in your favor. Life can make you bitter or better, always choose better. Contact Harjeet Sandhu with Remax Excellence. Make it happen. Dream it. Plan it. Work it. Get the best results with Harjeet Sandhu. ਕਾਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦਣੀ ਜਾਂ ਵੇਚਣੀ ਹੋਵੇ, ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਬੈਰਿਸਟਰ ਅਤੇ ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਸਰਜਨ ਲੂਥਰਾ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰਜਨ ਲੂਥਰਾ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਇਨ ਕੇਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵੀ ਆਰ ਆਲਵੇਜ਼ ਐਟ ਯੂਰ ਸਰਵਿਸ। ਯੂ ਕੈਨ ਕਾਲ ਮੀ ਐਨੀ ਟਾਈਮ। ਮਾਈ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਇਜ਼ 7804664660। ਮੇਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਦੇਖਾਂ। ਜੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੂਥਰਾ ਲਾਓ। ਸੱਥਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੈਲੋ ਦੋਸਤੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਰੀਅਲਟਰ ਹਰਜੀਤ ਸੰਧੂ, ਮੈਕਸਵੈਲ ਪਲੇਅਰਸ ਰੀਅਲਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਬੰਗਲੋ 158 ਬਲੈਕਬਰਨ ਡਰਾਈਵ ਅੱਜ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਸੋਲਡ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੋਲਡ ਸਾਈਨ ਦਾ ਸਟਿੱਕਰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ 7802333100। ਥੈਂਕ ਯੂ। Welcome to Ma Memory, your trusted partner for premium bulk products. Located in Alberta, Canada, Ma Memory connects you to a world of high quality, affordable products directly sourced from trusted manufacturers and wholesalers. Whether you're shopping for personal use or B2B needs, we're here to ensure a seamless and efficient supply chain experience. Tech essentials, micro SD cards, flash drives, SSDs, consumer electronics, cell phone accessories, USB chargers, cables, card readers, memory cards, laptop stands, and phones, lifestyle products,
perfumes, coffee filters, and premium coffee. As an authorized seller of Snesh, we guarantee authentic products that deliver performance and reliability. Why choose Ma Memory? Exceptional quality, we handpick every product to meet your high standards, customer commitment. Your satisfaction is our priority. Shop confidently with a trusted partner. To match the sizes that are on site, to match the hinge locations, the lock locations, so that the fit up is easy, and it makes it easier for the installer to put the doors into existing jams that are on the houses already. I love Edmonton, I want to stay in Edmonton, and we want to help the community and plus Canadian stuff. But definitely we're getting bigger out there, and this is kind of our niche to do these custom projects and make everything look fancy. Lots of people love it. People said, oh, that's why the name is Fancy Doors. ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਬੈਂਕੁਏਟ ਹਾਲ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੈਡਿੰਗਸ, ਰਿਸੈਪਸ਼ਨਸ, ਬਰਥਡੇ ਪਾਰਟੀਜ਼, ਲੇਡੀਜ਼ ਸੰਗੀਤ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਇਵੈਂਟਸ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਲੰਚ, ਹੌਲੀਡੇ ਪਾਰਟੀਜ਼, ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਲਚਰਲ ਇਵੈਂਟ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਧੀਆ ਬੈਂਕੁਏਟ ਹਾਲ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋ ਤਾਂ ਤਾਰਕ ਚੌਧਰੀ ਹੁਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਮਹਾਰਾਜਾ ਬੈਂਕੁਏਟ ਹਾਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚੋ। ਤਾਰਕ ਚੌਧਰੀ ਹੁਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਡੀਜੇ ਅਤੇ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। Maharaja Banquet Hall also has nice dance floors, live food stations, cocktail bar, guest lounge and plenty of parking. ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਈਵੈਂਟ ਨੂੰ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਤਾਰਕ ਚੌਧਰੀ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ 7806957200 780 695 7200 ਪਤਾ 9257 34A Avenue, Edmonton. Maharaja Banquet Hall. Wadhan TV present the news with the help of Lat Binder, Harjeet Sandhu, Uday Nayak, Bernadette Young, Sunil Kalia. Shri Durgayai Namah Atha Shri Durga Sahasranama Stotram. Bharatiya Cultural Society of Alberta is always dedicated to all religious celebrations of India, especially Hindus. More than 5,000 devotees from various religions celebrated Ashtami and Ramnavami in Edmonton and their vicinity. The Bharatiya Cultural Society of Alberta is important because it fosters and promotes Indian culture, heritage, and values within the Alberta community. अल्बर्टा समुदाय के भीतर भारतीय संस्कृति, विरासत और मूल्यों को बढ़ावा देती है। यह एक पुल के रूप में कार्य करती है, while also enriching the multicultural landscape of Alberta. The BCSA achieves this through various activities, events, and educational programs that celebrate Indian traditions, arts, and spirituality. The Bharatiya Cultural Society of Alberta is organizing 19th annual Jagran, all-night spiritual celebrations on Saturday, June 28th. जागरण एक हिंदू अनुष्ठान है जिसमें पूरी रात जागरण किया जाता है। यह भक्ति और आध्यात्मिक जागृति का एक महत्वपूर्ण अभ्यास है। जागरण आध्यात्मिक विकास को बढ़ावा देता है, दैवीय आशीर्वाद को आकर्षित करता है और नकारात्मकता को दूर करता है। In essence, Jagran is more than just a vigil. It's a transformative journey towards spiritual growth, devotion, and a deeper understanding of oneself and the divine. Jagran symbolizes overcoming ignorance and moving towards wisdom by staying awake and focused on spiritual practices. Artists Vineet Singh, Indian Idol fame, and Aishwarya, winner of Voice of India, will perform. Wadhan TV talked to the authorities, priests and artists regarding this upcoming great event for details. नमस्कार भक्तजनों, ये बहुत सी उत्साह और हर्ष का पर्व है कि भारतीय कल्चरल सोसाइटी एडमिंटन में अपना वार्षिक 19वां जागरण करने जा रही है। ये केवल जागरण नहीं होता, ये एक ऐसा महत्वपूर्ण बिंदु होता है पूरे वर्ष में जिसमें हर कोई
लौट के आता है, चल के आता है, पास आता है भगवती के दर्शन करने के लिए मंदिर में। आप जानते हैं कनाडा का जीवन कितना व्यस्त है, फिर भी लोग 6 महीने साल भर पहले छुट्टी लेके इस भगवती के जागरण के लिए आते हैं। ये एक अपने आप में मोटो है, एक पहचान है। तो ये हमारा 19वां जागरण जो 28 जून को शनिवार को होगा, जिसके लिए हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि इतने बड़े जो गीतकार हैं, संगीतकार हैं, गायक हैं, सभी कुछ हैं, वो हमारे साथ हैं। ऐश्वर्या जी, ऐश्वर्या नाम ही ऐश्वर्या भगवती का भी है। आई एम नॉट गोइंग ऑन दूसरी अदर लाइन्स, लेकिन ऐश्वर्य भगवान का स्वरूप होता है। जो उनके षड गुण हैं उनमें एक ऐश्वर्य होता है। और उसके साथ विनीत जी हैं जो परम विनीत हैं, परम विनम्र हैं, भगवती के चरणों का गुणगान करने के लिए ये हमारे साथ हैं। और हमारे साथ हमारे अध्यक्ष जो हैं इस समय अरोड़ा जी भी हैं और अर्चना जी भी हैं। अर्चना का अर्थ ही है भगवान की पूजा को ही अर्चना कहते हैं। तो ये सौभाग्य है जो हम सब मिले हैं भगवान के ऐश्वर्य में अर्चना करने के लिए। तो आप भी सभी आएँ और 28 जून को भगवती का स्वयं भी गान करें और गायन को सुने भी। हम किसी और लेवल पे पहुंच जाते हैं जब गायन होता है। हमारा मन, हमारी आत्मा भगवती में विलीन हो जाती है जब दीप प्रज्वलित हो जाता है। तो आइए सब कुछ भूल के हम अपना सब कुछ भगवती को समर्पित करें आने वाली 28 जून को। जय माता दी। वतन टीवी देखने वाले सभी भक्तजनों को आप सभी को हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप सैटरडे जून 28 को भारतीय कल्चरल सोसाइटी ऑफ एल्बर्टा हिंदू मंदिर में ज़रूर आएँ। पार्किंग लॉट में एक भव्य टेंट लगाया जा रहा है और यहाँ पे जागरण और एक महामाई का मेला सजाया जाएगा, जहाँ पे अनेक प्रकार के माता का भंडारा भी अरेंज किया गया है। तो आप प्लीज़ ज़रूर आएँ और इस माता रानी के भव्य जागरण में योगदान डालें। हमें आवश्यकता है आपकी वॉलंटियर्स की, हमें आवश्यकता है आपकी डोनेशंस की। कोई भी कार्य आपकी डोनेशंस के बिना, आपके वॉलंटियर के बिना संभव नहीं हो पाती। तो धन्यवाद देना चाहता हूँ सभी उन भक्तजनों का जिन्होंने माता रानी के भंडारे में योगदान डाला है। यहाँ पर मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि 18 फैमिलीज़ हैं जो मिलकर महामाई का भंडारा अरेंज कर रही हैं और बहुत सारे दानदाताओं ने हमें ऑलरेडी प्लेज किया है और डोनेशंस दे चुके हैं और मुझे आशा है कि आप भी अपना योगदान अवश्य डालेंगे। तो आप महामाई के जागरण में आएं और माँ भगवती का आशीर्वाद प्राप्त करें। जय माता दी। सबसे पहले बहुत ही धन्यवाद हैं अशोक गगवानी जी के, जो कि हमेशा ही हमारा हर प्रोग्राम आप तक पहुंचाते हैं और ये प्रोग्राम बहुत ख़ास है हम सब के लिए, सभी अल्बर्टा के लिए। मैं एडमिंटन भी नहीं कहूँगी, अल्बर्टा के लिए, क्योंकि जो भक्तजन हैं वो रेड डियर से, कैलगरी से और फोर्ट मैकमरी से भी आते हैं। तो सभी को आमंत्रण है सैटरडे जून 28 जागरण में आने के लिए। तो प्रोग्राम की रूपरेखा ऐसे रहेगी कि 6 बजे, जैसे कि राजेश जी ने बताया कि यहाँ पे 18 स्टॉल्स हैं प्रसाद के, तो 6 बजे वो सारा प्रसाद जो है विस्तृत होना शुरू हो जाएगा। तो आप आएँ, प्रसाद ग्रहण करें। उसके बाद 8 बजे जो है जागरण का प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। 8:30 बजे ज्योति प्रचंड होगा। उसके बाद लगातार आप देख रहे हैं कि हमारे जो बहुत ही सिंगर्स तो नहीं मैं कहूँगी कि जो बहुत ही अद्भुत होने जा रहा है यहाँ पे, हमारे ऐश्वर्या जी और विनीत जी यहाँ पे पहुँच गए हैं। तो वो सारी रात और उनके साथ उनकी पूरी टीम, म्यूजिशियंस की टीम पहुँच गई है। सारी रात हम माता महामाई के भजन इनके साथ गाएंगे और महामाई के चरणों में अपना पूरा ध्यान लगाएंगे। 1 बजे पंडित दीक्षित जी तारा रानी की कथा करेंगे। उसके बाद आरती का जो होता है वो सुबह 5 बजे होगा। तो आप आइए, इसमें अपना मन लगाइए और सुबह आरती सुनने के बाद ही, दर्शन करने के बाद, महामाई के जो ब्लेसिंग्स हैं उसको लेने के बाद ही आप घर पे जाइए। आप सभी को मेरा नमस्कार और जय माता दी। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप ज़रूर आइए 28 तारीख को। हम बहुत ही ज़ोरों शोरों से तैयारी में लगे हुए हैं और बहुत ही एक्साइटेड हैं आप सबसे मिलने के लिए और माता के भवन में अपनी हाज़िरी लगाने के लिए। तो आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी ज़रूर आइए, बहुत सारी संख्या में आइए और जय माता दी। जय माता दी। मेरा नाम विनीत है और मैं 28 तारीख के लिए बहुत ज़्यादा
एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं पहली बार यहाँ पे इस विशाल जागरण का हिस्सा बनने जा रहा हूँ और मैंने इस जागरण के बारे में बहुत सालों से सुनता आ रहा हूँ और इस साल माता रानी ने मुझे ये मौका दिया है कि मैं उनकी सेवा करूं यहाँ पे आके और मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ इस चीज़ के लिए और मैं कोशिश करूँगा कि इसको ऐसा यादगार जागरण बनाऊँ, ऐसी यादगार रात बनाऊँ कि जिसे आप आने वाले बहुत समय तक भूल ना पाएँ। और हम सब ने बहुत सारी तैयारियां की हैं, जो बैक स्टेज जो टीम रहती है उनकी तैयारियां हो चुकी हैं, अब हमारी बारी है कि उसको और कैसे भव्य बनाएं। तो हम पूरी तैयारी करके आए, मैं और ऐश्वर्या, और मैं चाहता हूं कि 2 लाइनें मैं आप सबके लिए गाऊं और ऐश्वर्या भी मेरे साथ गाएगी। मैं बालक तू माता शेरा वालिए, है अटूट ये नाता शेरा वालिए। मैं बालक तू माता शेरा वालिए, है अटूट ये नाता शेरा वालिए। शेरा वालिए माँ, मेहरा वालिए माँ, जोता वालिए माँ, लाटा वालिए माँ। मैं बालक तू माता शेरा वालिए, है अटूट ये नाता शेरा वालिए। जयकारा शेरा वालिदा बोल साचे दरबार की जय। देखिए, हम लोग सभी तरह के प्रोग्राम्स करते हैं और इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे हम माता को मनाने के लिए आते हैं, उनके लिए गाते हैं। तो मेरे ख्याल से इससे बढ़िया कोई और जॉनर नहीं हो सकता सिंगिंग के लिए। तो मेरे को तो बहुत मतलब ऐसा लगता है कि मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे यहाँ पे गाने का मौका मिल रहा है और या आई एम रियली एक्साइटेड। सर, मैं बिल्कुल हर छोटी छोटी चीज़ों से इंस्पायर होता हूँ। खैर, रफ़ी साहब तो बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ी चीज़ें करके गए हैं वो, तो मैं छोटी छोटी चीज़ों से भी इंस्पायर होता हूँ। और जैसे आपने बोला कि जिनको लगता है कि ये जो जागरण होता है अभी आप पता नहीं आप इसको रखेंगे कि नहीं, पर मुझे ऐसा लगता है माता रानी ना बुलाती बहुत कम लोगों को हैं, ये मौका ही बहुत कम लोगों को देते। तो जिनको ये मौका मिलता है वो बहुत नसीब वाले होते हैं, और जिनको नहीं मिल पाता है फिर वो ऐसी बात करते हैं। तो आई थिंक मी एंड ऐश्वर्या वी बोथ आर वेरी लकी एंड आई हैव बीन वेरी लकी, क्योंकि मैं बचपन से ये चीज़ें करता आ रहा हूँ और मुझे मेरी लाइफ में मैं ज़ीरो से स्टार्ट किया था मैंने, और आज मेरे पास माता रानी का दिया हुआ सब कुछ है। वो सिर्फ इस वजह से है क्योंकि मैं बचपन में 30 दिन, महीने में 30 दिन जागरण करता था, और मेरी आखिरी सांस तक भी मुझे बोला जाएगा कि जागरण में गाना है, मैं सबसे पहले वही चुनूंगा, क्योंकि उसकी ही वजह से मैं आज जो कुछ भी हूँ वो बना हूँ। सो मैं माता रानी का पहले भी फ़ैन था और ज़िंदगी भर रहूँगा। इसमें माता रानी का ही सबसे बड़ा हाथ है, क्योंकि लोगों को लगता है कि मैं टीवी पे आया और मैंने वापस से एक कमबैक किया, बट उसके पीछे की जो बात है वो ये है कि मैं जब लाइफ में जब भी आप अच्छा नहीं करते हो और जब आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रहा होता है ना, तो जब आप खुश होते हो तब भले ना है, लेकिन आपको दुख में सबसे पहले ऊपर वाला ही याद आता है और माता रानी याद आती हैं। तो मुझे भी वो याद आई थी और शायद उन्होंने ही मुझे ये रास्ता दिखाया कि मैं ऐसे करूं, और जिसका नतीजा ये है कि आज मैं यहाँ पे आया हूँ, जो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। तो मेरी ज़िंदगी चल ही रही है माता रानी की वजह से। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू माता रानी एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू भारतीय कल्चर सोसाइटी ऑफ एल्बर्टा, जिन्होंने मुझे और ऐश्वर्या को ये मौका दिया है कि हम इतने भव्य जागरण में परफॉर्म करें। अगर आप पूछ ही रहे हैं तो मैं 2 लाइन और बोलता हूँ कि इंडिया में भी ये कल्चर है जागरण और जगराता करने का, लेकिन यहाँ पे जितनी शिद्दत है, जितनी प्योरिटी है और जितना डेडिकेशन है, वो मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। और थैंक यू कि आप लोग इतना डेडिकेटेड हैं, इतना ज़्यादा। आपकी डेडिकेशन देख के मुझे मन कर रहा है कि मैं जितना कर सकता हूँ उससे और ज़्यादा अच्छा करूँ। सो आई एम ग्लैड कि मैं इतने अच्छे लोगों से मिला हूँ, जिन्होंने जो हिंदू धर्म का नाम इतना ऊपर करते हैं और इतना उसके पीछे इतना मेहनत करते हैं। सर, थैंक यू। सो मैं आप सबको ये भी बताना चाहता हूँ कि हमारे साथ बहुत ही गुणी म्यूजिशियंस आए हुए हैं, जो माता रानी के जगराते में हमको कंपनी देंगे, और
जिनका साथ है तो ही हम उतना अच्छा गा सकेंगे। तो उसमें से हमारे पास नवीन जी हैं जो बहुत ही अच्छे ऑक्टोपैड प्लेयर हैं, सैम्पलर प्लेयर हैं और बहुत अच्छे परकशनिस्ट हैं। BCSA मंदिर का बहुत बहुत धन्यवाद है। वो हर साल मुझ पे इतना फेथ करते हैं, मुझे यहाँ बुलाते हैं और मैं एक ज़रिया बन गया हूँ सबके लिए, इस मंदिर के लिए, कि जिसको भी ये याद करते हैं, जो भी आर्टिस्ट चाहिए वो मेरे ज़रिए से यहाँ आ जाता है। इनका इतना विश्वास है मेरे ऊपर और सारी माता रानी की कृपा है। जय माता दी। थैंक यू राजेश भैया, थैंक यू अर्चना मैम, थैंक यू टू BCSA। हमने जागरण के लिए नहीं इन्हें बुलाया, हमने कुछ नहीं किया, ये माता रानी की ब्लेसिंग्स है हम पे कि उसने हमें चुना है। उस माता रानी ने ऐश्वर्या जी को, उस माता रानी ने विनीत जी को चुना है। तो ये दोनों तो इतने बड़े उपासक हैं माता रानी के कि उसकी एक आवाज़ पे ये खिंचे चले आए। इन्होंने हमसे कोई पूछा नहीं कि कैसे अरेंजमेंट्स होंगे। देवी ध्यानम ॐ ह्रीं काराभ्राभां कटाक्षैररिकुलभयदां मौलिबद्धेन्दुरेखाम्। Looking for high-quality, fully customizable windows and doors for your next project? Come visit Durabuilt Windows and Doors, where it's all about you. We value service, style, and innovation, and we'll work closely with you to help your vision come to life. With 2 convenient locations in Edmonton, our team will ensure your new windows and doors encourage friends and neighbors to take notice. Visit a design gallery today or schedule an in-home consultation. Call us at 1-800-544-3815 or visit our website at durabuiltwindows.com. ਗੋਲੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹੋਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਵੀ ਲੱਭੋਗੇ? ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਚੁੱਕਾ ਆ, 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। 6 ਟੈਕਸ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਟਰਾਈ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਰਹਿ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਨਵੇਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਪਰਪਸਸ ਲਈ ਸਿਰਫ KP ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਆ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਡ। Are you satisfied now? It's more than enough. Kapil ji, you're the best. KP Accounting and Tax Services provides best results for tax preparation, bookkeepers, payroll, GST return, business advisory, and best specialist tax consultant in Edmonton. Contact KP Accounting and Tax Services. 9133 35 Avenue Northwest, Edmonton, Alberta. Phone number 780-469-2677. Just make you cry. Hello folks, my name is Harjeet Sandhu. I'm a realtor with Maxwell Players. Just want to let you know that beautiful bungalow 158 Blackburn Drive is officially sold now. And if you want to see a sold sign on your property, give me a call 780-233-3100. Is in my eyes. Feels like I could break it any moment. Welcome to Ma Memory, your trusted partner for premium bulk products. Located in Alberta, Canada, Ma Memory connects you to a world of high quality, affordable products directly sourced from trusted manufacturers and wholesalers. Whether you're shopping for personal use or B2B needs, we're here to ensure a seamless and efficient supply chain experience. Tech essentials, micro SD cards, flash drives, SSDs, consumer electronics, cell phone accessories, USB chargers, cables, card readers, memory cards, laptop stands, and phones, lifestyle products, perfumes, coffee filters, and premium coffee. As an authorized seller of Snesh, we guarantee authentic products that deliver performance and reliability. Why choose Ma Memory? Exceptional quality, we handpick every product to meet your high standards, customer commitment. Your satisfaction is our priority. Shop confidently with a trusted partner.
ਸਰਬਰਿੰਦਰ ਸਰਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਰਸਨਲ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨਸ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨਸ, ਕੰਪਾਈਲੇਸ਼ਨ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟਸ, ਰਿਵਿਊ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟਸ, ਆਡਿਟ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟਸ, ਬੁੱਕ ਕੀਪਿੰਗ, GST ਰਿਟਰਨਸ, ਪੇਰੋਲ, ਟਰਸਟ ਐਂਡ ਐਸਟੇਟਸ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਲੈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਸਰਬਰਿੰਦਰ ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ 7802006362। ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਅਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਟੈਕਸ ਰਿਲੇਟਡ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲਈ ਸਰਾਂ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ। ਸਰਾਂ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਹਮ ਹੈਲਪ ਯੂ। To match the sizes that are on site, to match the hinge locations, the lock locations, so that the fit up is easy and it makes it easier for the installer to put the doors into existing jams that are on the houses already. I love Edmonton. I want to stay in Edmonton, and we want to help the community and plus Canadian stuff. But definitely we're getting bigger out there, and this is kind of our niche to do these custom projects and make everything look fancy. Lots of people love it. People said, "Oh, that's why the name is Fancy Doors." ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਬੈਂਕੁਏਟ ਹਾਲ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੈਡਿੰਗਸ, ਰਿਸੈਪਸ਼ਨਸ, ਬਰਥਡੇ ਪਾਰਟੀਜ਼, ਲੇਡੀਜ਼ ਸੰਗੀਤ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਇਵੈਂਟਸ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਲੰਚ, ਹੌਲੀਡੇ ਪਾਰਟੀਜ਼, ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਲਚਰਲ ਇਵੈਂਟ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਧੀਆ ਬੈਂਕੁਏਟ ਹਾਲ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋ ਤਾਂ ਤਾਰਕ ਚੌਧਰੀ ਹੁਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਮਹਾਰਾਜਾ ਬੈਂਕੁਏਟ ਹਾਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚੋ। ਤਾਰਕ ਚੌਧਰੀ ਹੁਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਡੀਜੇ ਅਤੇ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। Maharaja Banquet Hall also has nice dance floors, live food stations, cocktail bar, guest lounge and plenty of parking. ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਇਵੈਂਟ ਨੂੰ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਤਾਰਕ ਚੌਧਰੀ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ 7806957200 780 695 7200। ਪਤਾ 9257 34A Avenue, Edmonton. Maharaja Banquet Hall. Watan TV present the news with the help of Lot Binder, Harjeet Sandhu, Uday Nayak, Bernadette Young, Sunil Kalia. चालीस वर्षों से अल्बर्टा हिंदी परिषद हिंदी भाषा और ज्ञान का एक प्रकाश स्तंभ रहा है, जिसने अनगिनत छात्रों के मन और भविष्य को आकार दिया है। हिंदी के प्रति प्रेम को बढ़ावा देने के लिए कई और वर्षों का इंतजार है। हिंदी शिक्षा के 40 वर्षों का उत्सव मनाना हमारी भाषा और संस्कृति को संरक्षित करने की हमारी प्रतिबद्धता का प्रमाण है। अगले 40 वर्ष हिंदी के लिए और भी अधिक सफलता और गहरी प्रशंसा लेकर आएं। हिंदी की धुन में हमारी एकता निहित है। हिंदी के 40 वर्षों का उत्सव मनाना विरासत की भाषा, सीखने की विरासत का प्रतीक है। हमारे प्रिय अल्बर्टा हिंदी परिषद को 40वीं वर्षगांठ की शुभकामनाएं। हिंदी भाषा और संस्कृति के प्रति आपके समर्पण के लिए धन्यवाद। मन को पोषित करने, दिलों को समृद्ध करने और हमारी भाषा को संरक्षित करने के 40 वर्ष। अल्बर्टा हिंदी परिषद की यात्रा के अगले अध्याय के लिए शुभकामनाएं। वतन टीवी अल्बर्टा हिंदी परिषद के 40 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह पर एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत है। For 40 years, Alberta Hindi Parishad has been a beacon of Hindi language and knowledge, shaping the minds and futures of countless students. Here's to many more years of fostering a love for Hindi. Celebrating 40 years of Hindi education, a testament to our commitment to preserving our language and culture. May the next 40 years bring even greater success and a deeper appreciation for Hindi. In the melody of Hindi lies our unity. Celebrating 40 years of Hindi, a language of heritage, a legacy of learning. Happy 40th anniversary to our beloved Alberta Hindi Parishad. Thank you for your dedication to Hindi language and culture. 40 years of nurturing minds, enriching hearts, and preserving our language. Here's to the next chapter of our Alberta Hindi Parishad's journey. आज हम लोग अल्बर्टा हिंदी परिषद की 40वीं सालगिरह मना रहे हैं। तो एक बहुत ही बड़ा उत्सव का विषय है। अल्बर्टा हिंदी परिषद जब फॉर्म हुआ था बहुत ही छोटा सा एक परिवार था, अब ये परिवार काफ़ी बड़ा हो गया है।
इसमें बहुत लोग हमारे साथ जुड़े हैं, अपने बच्चों को भेजते हैं हिंदी सीखने के लिए। तो जो अल्बर्टा हिंदी परिषद है, इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो है हिंदी का प्रचार प्रसार करना, टू प्रमोट एंड प्रिजर्व हिंदी लैंग्वेज। हिंदी आपको पता है, हिंदी मेरी मातृभाषा तो नहीं है, लेकिन मेरा प्यार हिंदी के साथ बहुत जुड़ा हुआ है। मैं अक्सर कहता हूँ कि अगर आप हिंदी से करते हैं प्यार तो आप AHP से ना करें इनकार। तो सभी को 40 साल की बहुत बहुत बधाइयाँ। मैं आपको अपने आप को हिंदी का बेटा मानता हूँ और जो सम्मान मेरे मन में मातृभूमि के लिए है, अपनी माँ के लिए है, वही मेरी मातृभाषा के लिए है। आज हिंदी से जुड़े आप सभी महानुभावों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आप सभी की सराहना करता हूँ कि आप अपना कीमती समय आज निकाल के इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ सम्मिलित हुए हैं। अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मागे, गाए तब जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय। अब हम लोग प्रस्तुत करेंगे। नमस्कार अमित जी, जो हमारे अल्बर्टा हिंदी परिषद के प्रेसिडेंट हैं, ये उनका दूसरा साल है और काफ़ी सारे अकम्पलिशमेंट्स किए हैं। अमित जी, आज इस प्रोग्राम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक तो हमारी सबसे बड़ी अकम्पलिशमेंट जो है कि हमारा वतन टीवी हमारे साथ जुड़ा हुआ है। सबसे बड़ी अकम्पलिशमेंट तो हमारी यही है, और उसके साथ रेनू जी का और बाकी सब हस्तियों का हमें प्यार मिल रहा है। बहुत बड़ा अच्छा लगता है, लोग जुड़ते हैं हमारे साथ। और ये 40 साल से जो अल्बर्टा हिंदी परिषद सर्वाइव कर रहा है, या जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव कर रही है, उसके पीछे करंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ पुरानी ऑर्गेनाइजेशन का बहुत बड़ा हाथ रहता है। और इसके साथ साथ हम ये भी कहना चाहूँगा, ये ऑलवेज रहेगा, कल, आज और कल। कल जो चला गया, आज जो यहाँ खड़ा है, बिल्कुल, और आने वाला कल, बिल्कुल, इनके किसी भी एक के बिना कोई भी ऑर्गेनाइजेशन की सोसाइटी अधूरी है। तो मेरी निवेदन है आने वाली जनरेशन से कि प्लीज़ अपना कुछ समय सोसाइटीज़ के लिए भी दें।
रेनू जी हमारे साथ जुड़ी हैं, जो कि शांति निकेतन की इस टाइम पे प्रेसिडेंट है, और उनसे हम पूछना चाहते हैं कि हिंदी का जो प्यार है, मुझे पता है कि वो हिंदी के गाने काफ़ी गाती हैं, और हिंदी का जो प्यार है वो आपके साथ शेयर करेंगी। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आपको हिंदी के साथ जो प्यार है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? पहले तो थैंक यू बोलूँगी वतन टीवी का और हिंदी स्कूल का, जो इतना मतलब सालों से एडमिंटन में बच्चों को हिंदी सिखाने की, पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने काफ़ी बच्चे देखे जो ग्रेजुएट हुए हैं यहाँ से, स्कूल से, और आगे अभी स्कूल में पढ़ा रहे हैं। इट्स अ वेरी वेरी प्राउड थिंग टू बी ऑफ, बिकॉज ये बहुत बड़ी अकम्पलिशमेंट है दूसरी कंट्री में रह के, और इस चीज़ को आगे बढ़ाना इट्स नॉट इजी। बाकी जहाँ तक मेरा सवाल है हिंदी के लिए, मैं इंदौर में बड़ी हुई, वहाँ तो हिंदी सबसे ज़्यादा प्रचलित है। मध्य प्रदेश में हम तो हिंदी बोल के, हिंदी सुन के, हिंदी बड़े हुए हैं, और आज जो हमें मौका मिला है अंताक्षरी में पार्ट लेने का, हिंदी गानों का, इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर अस, क्योंकि हमारा बॉलीवुड तो वर्ल्ड में फेमस है। बाकी हम हिंदी के गाने गा के और अपने हिंदी को आगे बढ़ा सकें किसी तरीके से, हमारा छोटा सा कंट्रीब्यूशन, तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। थैंक यू। थैंक यू। एक छोटा सा सवाल अमित जी के लिए। अमित जी, आप एक जल्दी से बताइए कि अल्बर्टा हिंदी परिषद जो है इसमें जो पेरेंट्स है वो अपने बच्चे क्यों भेजें? देखिए, मेरा जो आर्टिकल छपा है समारिका में, उसमें मैंने क्लियर कट ये लिखा है कि जो हिंदी है वो सिर्फ आज की विरासत नहीं है, उसको यहाँ तक लाने के लिए पुरानी और हमारे दादा दादी, उनके दादा दादी और उनके दादा दादी का कंट्रीब्यूशन रहा है। तो इतनी अच्छी विरासत को हम ऐसे ही जाने नहीं दे सकते। इसके बारे में मैंने अपनी स्मारिका में लिखा है। तो इस हेरिटेज को हम ऐसी लॉस नहीं कर सकते हैं। तो इस हमारी ड्यूटी है कि हम अपने बच्चों को हिंदी के साथ ज़रूर जोड़ें। धन्यवाद। एक बहुत ही मतलब क्विकली आप ये बता सकते हैं कि स्मारिका क्या है? स्मारिका जो है वो हमारी एक पत्रिका है जो हमने छापी है। 44 पेजेस की पत्रिका है। इसमें आप जो पाएंगे बहुत ही ज्ञानवर्धक चीज़ें हैं, योगा है और कहानियाँ हैं, कविताएं हैं और हमारे संदेश हैं। तो बहुत ही बढ़िया है, पत्रिका है। आप उसको अगर लेके जाएंगे तो आप, मेरे को पूरा गारंटी है कि आप उसको फेंकेंगे नहीं। नहीं, मैं अभी हाल में 6 महीने हुए मुझे अल्बर्टा हिंदी परिषद ज्वाइन किए हुए एज अ ट्रेजरर। लेकिन मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ कि कुछ भी थोड़ा सा भी जो मैं अपना कंट्रीब्यूट कर पा रही हूँ, और आगे इसको ले जाने का बहुत बड़ा विचार है हमारा। और हम सबसे आग्रह करेंगे कि अपने पेरेंट्स, आप अपने बच्चों को भेजिए, और यहाँ पे बहुत सारे चीज़ें वो सीखेंगे हमारे संस्कृति के बारे में, हमारे हिंदी लैंग्वेज के बारे में। और वो एक जोड़ता है, हिंदी लैंग्वेज है, क्योंकि हमारे भारत में बहुत सारे रीजनल लैंग्वेजेस हैं और हिंदी एक कॉमन लैंग्वेज है जो सब प्रोविंस को एक दूसरे से जोड़ता है। तो प्लीज़ आप अपने बच्चों को भेजिए, और ये बहुत अच्छा कार्यक्रम आप लोगों ने ऑर्गेनाइज़ किया है, सो बहुत बहुत धन्यवाद। 40वीं वर्षगांठ के अवसर पर उन सभी मनहपूत ऋषियों को जिन्होंने अल्बर्टा हिंदी परिषद का हिंदू सोसाइटी के मंदिर में बैठ करके इस संस्था का बीजारोपण किया था, आज उसके 40 साल पूरे होने के अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं।
अब हमारे साथ अरुणा जी जुड़ी हुई हैं जो हमारी इस टाइम पे वाइस प्रेसिडेंट प्रोग्राम है। इनके जिम्मे आज एक बड़ा इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम था, वो था अंताक्षरी का, जो इन्होंने अभी ख़त्म किया है, जो प्रिलिमिनरी राउंड है, और फाइनल राउंड के लिए इन्होंने 3 टीमें सेलेक्ट की हैं। तो मैं उनसे चाहता हूं कि हिंदी के बारे में अपना प्यार ज़रा साझा कीजिए वतन टीवी के श्रोताओं से, और बताइए कि आज जो अंताक्षरी है इसमें आपको क्या लग रहा है कि मतलब विल इट गेट मोर इंटेंस? क्या ये और मतलब ऐसा होने वाला है जिसमें कि मारपीट हो सकती है? बिल्कुल बिल्कुल, थैंक्स धन्यवाद कहूँगी, धन्यवाद आप सभी का हमारे इस इवेंट में आने के लिए, जो हमने ये किया है हमारी 40वीं वर्षगांठ पे, जो कि अल्बर्टा हिंदी परिषद का 40वां जन्मदिन हम मना रहे हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है हमारे लिए। हमने अंताक्षरी से शुरू ज़रूर किया है, पर ये पहलाक्षरी बन गई क्योंकि इसी से शुरू हुआ हमारा ये कार्यक्रम। तो हमारे जो अभी जो टीम्स हैं उसमें से 3 जो फाइनल में आ चुके हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग टीम्स हैं एक्चुअली, और मुझे पूरा यकीन है डिशम तो बनता ही है इसमें। तो इसका जो फाइनल राउंड में हमने कुछ तो रखा है, मनोज कुमार जी के लिए भी रखा है, मनोज कुमार जी का एक ट्रिविया रखा है, बिकॉज वी आर गिविंग श्रद्धांजलि टू हिम टू, तो वो रखा हुआ है। तो हमारा मेन मंतव्य सब चीज़ों का है कि हमारे साथ हमारे आने वाली पीढ़ियाँ जुड़ जाएँ हिंदी के इस अभियान में, हिंदी सिखाने के इस अभियान में आएँ, जुड़िए, जुड़ते जाए, आगे बढ़ता जाए हमारी हिंदी का नाम। धन्यवाद जी। मैं पहले हिंदी स्कूल से जुड़ा हूँ करीब 2006 से लेकर 2018 तक, और भाषा की आवश्यकता में इसलिए पड़ती है कि सबसे पहले काम तो है कि बच्चों को अपने ग्रैंड पेरेंट्स से, मैटरनल पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स से, अपनी कम्युनिटी से जुड़ने का एक मौका मिलता है, अपने फंक्शन से, फेस्टिवल से जुड़ने का एक मौका मिलता है, और ऑन टॉप ऑफ दैट हिंदी लैंग्वेज कहीं ना कहीं इंटरनेशनल लेवल पे बोली जाने लगी है। दूसरा हमारा बॉलीवुड है जो लोगों को अट्रैक्ट करता है। तो इन सब से एक मुख्य चीज़ ये है कि हम उसके साथ साथ अपनी कल्चर को, अपनी लैंग्वेज को, अपने आर्ट्स क्राफ्ट्स प्रोग्राम्स को, सबको हम लाइव कर रख पा रहे हैं इसके माध्यम से। सो एक वो सबसे बड़ा अच्छा कारण है, और बच्चों को अच्छा लगता है अपनी रूट्स से जुड़ना, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से जुड़ना, अपनी लैंग्वेज से जुड़ना, अपनी कल्चर से जुड़ना, बॉलीवुड से जुड़ना, ऑल दीज थिंग्स दे रियली लाइक। अल्बर्टा हिंदी परिषद का इसमें कितना योगदान है? अल्बर्टा हिंदी परिषद अपनी तरफ से एक स्ट्रॉन्ग रोल प्ले कर रही है, बहुत लंबे टाइम से ऐसा चल रहा है, और उसमें मेन ये कि हम सितंबर से रजिस्ट्रेशन शुरू करते हैं। डिफरेंट तरीक़ों से हम कम्युनिटी में लोगों को कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, जिनके जो इमिग्रेंट्स हैं वो अपने बच्चों को लेकर आएँ और भाषा के माध्यम से अपनी जड़ों से जुड़े रहें। जो है हिंदी परिषद की 5 क्लासेस होती हैं, ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 5 तक की, जिसमें डिफरेंट लेवल के स्टूडेंट्स होते हैं। उसके अलावा एक हमारा जो एडल्ट ग्रुप है, जिनको सिर्फ लैंग्वेज सीखनी होती है, पढ़ना और लिखना नहीं, सिर्फ बोलना चाहिए, उनकी भी एक अलग क्लास होती है। और उसमें एक वाइड बैकग्राउंड के लोग आते हैं, अब फिजी से, ट्रिनिडाद टोबैगो से, जो है अफ्रीकन के कुछ कंट्रीज, कीनिया से, तो बहुत सारे लोग आते हैं जो अब काफ़ी सीनियर्स हैं, लेकिन उनको कहीं ना कहीं ये लगता है कि अगर मुझे हिंदी आए तो मैं अपनी कल्चर से, मैं अपनी जड़ों से जुड़ूं, अपना एक जो लिटरेचर बैक होम है, चाहे वो रिलीजियस हो, अपने स्क्रिप्चर्स हों, वो उसी भाषा में अगर एक्चुअली पढ़ें, और कि रामचरितमानस अगर बजाय इंग्लिश में पढ़ने के अगर वो हिंदी में पढ़ें तो उन्हें ज़्यादा उसके मर्म तक पहुंच पाएंगे। सो हिंदी स्कूल एक बहुत अच्छा रोल इसमें अपना कर रही है, और डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, डिफरेंट एक्टिविटीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से हिंदी भाषा के बढ़ाने में, उसके संरक्षण में, संवर्धन में अपना एक बड़ा योगदान दे रही है। इसके साथ जो आने वाला कल है उसके लिए मेरे को निवेदन ये है कि वो अपने बच्चों को इसी तरीके के साथ स्कूल में लाते रहें, ताकि वो हिंदी सीखते रहें। आप जैसे कि मैंने अपनी स्मारिका में संदेश में भी लिखा है, अगर आप लोग अपने बच्चों को स्कूल नहीं लेके आएंगे तो मैं आपको इस चीज़ की बहुत बड़ी गारंटी देने वाला हूँ, और कोई नहीं लेके आएगा। अब हमारे साथ जुड़े हुए हैं पुनीत मनचंदा जी, ये अल्बर्टा हिंदी परिषद के पास्ट प्रेसिडेंट हैं, और मैं इनसे जो सवाल मैं सबसे पूछ रहा हूँ, मैं इनसे भी यही पूछूंगा कि इनका हिंदी के प्रति जो प्यार है उसके बारे में आप सब लोगों के साथ साझा करेंगे, और ये भी मैं इनसे सवाल पूछूंगा कि आगे हमारी जो परिषद है, आगे जो हमारी हिंदी लैंग्वेज है, जो हमारा मोटो है कि इसको प्रिजर्व और प्रोटेक्ट करना है, उसके बारे में इनका क्या ख्याल है? पुनीत। धन्यवाद रोहित जी। हिंदी हमारी मातृभाषा, जैसे कि राजीव जी ने बहुत ही अच्छा व्याकरण दिया है हिंदी का, और हिंदी
जब हम बोलते हैं तो इसमें जितना अपनापन है वो किसी भी और भाषा में नहीं है। तो जो चीज़ दिल को छू जाती है वो हिंदी ही है। आप अंग्रेज़ी में जितने भी आप देखते हैं पोम कहते हैं उनको, लेकिन जब कविता है, कविता में छंद होते हैं, आप गाने देखिए, ये सब वो चीज़ें हैं जो हमें, जिनसे हम के साथ बड़े हुए हैं और जो हमारी यादों के साथ जुड़े हुए हैं। तो हिंदी जैसी चीज़ तो और कोई हो भी नहीं सकती हमारी ज़िंदगी में। हम जब भी हिंदी के बारे में सोचते हैं, बात करते हैं, वो अपने आप ही आती है, हमें कोई इसमें कोई भी एफर्ट नहीं करना पड़ता। तो हिंदी हमारे दिल के बहुत ही करीब है और हम चाहते हैं कि हिंदी को हम और आगे बढ़ाएं। जो स्कूल है ये सबसे बड़ी एक उपलब्धि है यहाँ पर एडमिंटन वासियों के लिए, और हम चाहेंगे कि ऐसे हिंदी के स्कूल और भी जगहों पे खुले ताकि हम हिंदी को और आगे लेके जाएं। आपकी नई जनरेशन जो आती है, ऑफ कोर्स उनको हिंदी के लिए बढ़ावा देने के लिए थोड़ा प्रयत्न करना पड़ेगा, लेकिन अगर हम लोग हिंदी को बढ़ा सकें, इससे बढ़िया और कोई काम नहीं हो सकता। तो आप सबसे यही निवेदन है कि आप सब हिंदी की तरफ थोड़ा ध्यान दें, अपने बच्चों को थोड़ा प्रोत्साहन दें और हिंदी को और आगे बढ़ाएं, ताकि हम मल्टी लैंग्वेज वाले जो बच्चे होते हैं वो लाइफ में भी बहुत बेटर करते हैं। तो लेट्स ऑल सपोर्ट हिंदी और उसको हम और आगे लेके जाएं। और आज मेरे साथ एक हमारे जो एक AHP के स्तंभ हैं, और वो ऐसे स्तंभ हैं कि जिन्होंने जो फाउंडिंग मेंबर भी हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजीव रंजन जी। इन्होंने AHP की पहले स्थापना की थी और आज भी उतना ही काम कर रहे हैं जितना ये आज से 40 साल पहले कर रहे थे। तो ये बड़ी सराहनीय बात है। इन्हीं के कर कमलों से हमने एक जो ये मैगज़ीन है समारिका, ये हमने आज इसका अनावरण करेंगे। राजीव जी कुछ साझा करेंगे। आपका हिंदी से प्यार, आपका इस स्कूल को बनाना, आपका जो खून पसीना इसमें आपने डाला है, उसके बारे में कुछ कहेंगे। वतन टीवी के श्रोताओं से तो बहुत अच्छा होगा। धन्यवाद रोहित, जो परिचय आपने दिया है अनमोल है, इसके लिए आपका आभार व्यक्त करते हैं। वतन टीवी का भी हम आभार व्यक्त करते हैं कि वतन की आवाज़ लेकर जो यहाँ आ रहे हैं और वतन तक पहुँचा रहे हैं, इसके लिए आप लोगों का सहयोग अनुपमेय है। इसी तरह काम करते रहिए। सन्नानी जी, बहुत अच्छा लगता है। हम सीना ठोक के कहते हैं, आवाज़ लगाकर कहते हैं, हाथों में गीता रामायण कुरान उठा के कहते हैं, जो चली आ रही सदियों से हम वो अनमोल कहानी है, दुनिया में सबसे सच्चे अच्छे हम हिंदुस्तानी हैं। हिंदी हमारी भाषा ही नहीं, हमारी माता भी है। जो सबसे पहले शब्द हमारी ज़बान से निकले थे वो हिंदी के ही थे, और उस हिंदी ने हमें इतना प्यार दिया कि वो ऊपर से नीचे तक हम हिंदी में समाये हुए हैं। और जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं हिंदी परिषद में, पुनीत हैं हमारे साथ, रोहित हैं, अमित हैं, अरुणा हैं, अनगिनत नाम हैं, और जितने बोर्ड आए हैं अभी तक, उन्होंने इतना अच्छा काम किया है कि आज वो आवाज़ एडमिंटन में गूंज रही है, अल्बर्टा में गूंज रही है। पूरे कनाडा में एक ही स्थान ऐसा है जहाँ हिंदी का अपना भवन है, और वो भवन अल्बर्टा हिंदी परिषद के नाम से जाना जाता है, जहाँ तरह तरह की हम लोग सेवाएं उपलब्ध कराते रहे हैं। ट्रांसलेशन से लेके हम लोग कवि सम्मेलन, अंताक्षरी, वाद विवाद प्रतियोगिता और धर्म के ऊपर भी चर्चाएं होती रही हैं। हमने औरों का भी सहयोग दिया है और संस्थाओं का भी सहयोग दिया है, और इसी तरह हमें आशा है कि जो आने वाली पीढ़ी हैं और हमें सहयोग देती रहेंगी। केवल इसलिए नहीं कि हम एक हिंदी केवल
एक वेधशाला होकर रह गई है। अपने बच्चों को लेके आएँ, उन्हें हिंदी सिखाएं। मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। अब आपको मिलाते हैं हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यकारिता से। ये हैं हमारी अलका जी, जो हमारे हिंदी स्कूल की प्राध्यापिका हैं, प्रिंसिपल हैं, और इनसे पूछेंगे कि हिंदी परिषद में इनका कंट्रीब्यूशन, इनकी फैमिली का कंट्रीब्यूशन काफ़ी रहा हुआ है। तो हम इनसे ये पूछेंगे कि आपका जो हिंदी के प्रति प्यार है, मैं सबसे यही सवाल पूछ रहा हूँ क्योंकि आज 40वां दिवस 40th एनिवर्सरी मना रहे हैं इनकी, तो हम ये जानना चाहते हैं कि इस सालगिरह में कितना इम्पॉर्टेंट है, कितना महत्वपूर्ण है आपके लिए कि आज अल्बर्टा हिंदी परिषद अपनी 40th सेलिब्रेशन मना रहा है, सालगिरह मना रहा है, और आप बच्चों को क्या कहना चाहेंगे अपने? देखिए, ये 2 दशकों से तो मैं ही हिंदी स्कूल से जुड़ी हुई हूँ और ये मेरा हिंदी भाषा के प्रति अति प्रेम है कि मुझे इससे कहीं दूर जाने ही नहीं देता है। और मैं बच्चों से यही कहती हूँ कि जो मातृभाषा है हमारी हिंदी, वो बहुत ही मधुर है और हमारे जो जितने भी हमारे पुराण है, शास्त्र हैं, जिसमें हमारी संस्कृति छिपी हुई है, वो सब संस्कृति हमारी हिंदी भाषा और संस्कृत भाषा में है। तो मैं चाहती हूँ कि वो हिंदी भाषा सीखे और उसको मौलिक रूप में पढ़े, ट्रांसलेशन ना पढ़े। जो चीज़ मौलिकता में है वो ट्रांसलेशन में वो पूरा नहीं मिल पाता। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि वो, और जब भारत देश में जाए तो अपनी भाषा में वार्तालाप करे सबसे, तो ये बहुत उसका आनंद ही हो रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और हम बच्चों को हमारी स्कूल में 5 साल से लेकर के और फिर एडल्ट क्लास, कोई लिमिट नहीं है एज की, आराम से। अभी हमारे 64 इयर्स के सबसे सीनियर स्टूडेंट है एडल्ट क्लास में, 64 इयर्स, और वो इतना 64 साल के, विंस्टन उनका नाम है, वो अभी आए हुए हैं यहाँ पर भी। तो हाँ, तो हम इनसे पूछना चाहेंगे कि उस टाइम पे और आज इनके बच्चे अल्बर्टा हिंदी परिषद में स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो आज उस टाइम पे जब ये प्रिंसिपल थे और आज जब ये अपने बच्चे को देखते हैं, आपको लगता है कुछ चेंजेस आए हैं, कुछ चेंजेस और चाहिए? और आपका जो हिंदी का प्यार है, जैसे मैंने सबसे पूछा, आप भी साझा कीजिए वतन टीवी के श्रोताओं के साथ। बिल्कुल, धन्यवाद रोहित। हिंदी, मैं मध्य प्रदेश से आता हूँ, हिंदी मेरी भाषा है, मेरा हिंदी बेल्ट से हूँ। तो हिंदी, जब मैं भारत से यहाँ पर आया था तो हिंदी स्कूल से जुड़ा राइट अवे, और मेरा अच्छा अनुभव रहा। और मुझे लगता है कि हिंदी इतनी ज़रूरी है, हिंदी को मैं बड़ा सराहनीय है कि संस्था जो है हमारी, जो हिंदी बढ़ाने का काम कर रही है, संरक्षण कर रही है, प्रचार प्रसार कर रही है, तो ये बहुत आवश्यक है। जब बच्चे, मैं देखता हूँ जब बच्चे हिंदी बोल रहे हैं, नाटक बोल रहे हैं, नाटक कर रहे हैं या कविता सुना रहे हैं, तो बड़ा गर्व महसूस होता है और बड़ा प्राउड फील होता है कि हमारे पास ऐसी संस्था है जो भारत से इतनी दूर होने के बाद भी वो ऐसा काम कर रही है जो हमारी संस्कृति को, हमारे मूल्यों को आगे बढ़ा पा रही है। सो मैं शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद।
रमा जी, आज से करीब 4 साल पहले मैं रमा जी से मिला था पहली बार, और हम उस टाइम पे हिंदी स्कूल का गठन कर रहे थे। उनके टीचर्स के लिए हम कुछ ऐसे स्पेशल टीचर ढूंढ रहे थे जो कि आर्ट्स एंड क्राफ्ट में रुचि रखता हो, कुछ बच्चों को कुछ कल्चरल प्रोग्राम सिखाए। तो हमने सेलेक्ट किया था रमा जी को उस टाइम पे, और उन्होंने वो काम बेहतरीन तरह से पूरा किया। जो इन्होंने काम किया उस टाइम पे बहुत सराहनीय काम था। और मैं आज चाहता हूं कि रमा जी आज वतन टीवी के श्रोताओं से, आज आप हम लोग यहाँ खड़े हैं, तो उनसे आप शेयर कीजिए, उनसे आप साझा कीजिए जो आपका एक्सपीरियंस था हिंदी के बच्चों के साथ, हिंदी स्कूल के साथ, और आज आप क्या कहना चाहेंगी एडमिंटन के लोगों को जो कि ये प्रोग्राम देख रहे हैं वतन टीवी के माध्यम से, कि हिंदी को कैसे बढ़ाएं, कैसे और बच्चे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो आप प्लीज़ अपने जो विचार हैं वो आप यहाँ साझा कीजिए। नमस्कार। पहले तो मैं ये बता दूं कि ये सच है कि 4 साल पहले मुझे रोहित सतीश जी का ही फ़ोन आया था कि आपका सुना है आपके बारे में, आप एक बार आ जाओ, हम आपके बारे में और जानना चाहते हैं। और रोहित सतीश जी ही थे जो 4 साल पहले मुझे हिंदी विद्यालय के लिए इन्होंने अध्यापिका चुना था। और जिस चीज़ के लिए चुना था और जिस आशा से इन्होंने चुना था वो मैंने पूरी की है। मैं कोशिश करती हूँ हमेशा, मुझे उसमें रुचि है। मैं 40 साल से इसी एक्टिविटीज़ में से जुड़ी हुई हूँ, इंडिया से, स्कूल से। तो मुझे यहाँ पे मिल गया, वो मेरा सौभाग्य था, बहुत ही अच्छा। और आज हम जिस उद्देश्य से यहाँ इकट्ठे हुए हैं 40वीं वर्षगांठ मनाने के लिए, तो मैं पूरे पुराने एल्बम 40 साल पुराने देख रही थी और कैसे इसकी शुरुआत हुई वो सब सुन के मुझे बहुत ही अच्छा लगा। इसको बताने में मुझे बहुत ही गर्व हो रहा है कि मैं एक बहुत मजबूत संस्था से यहाँ जुड़ी हुई हूँ और जो मेरे मन लायक है, और मुझे अपने सभी तरह के शौक़ पूरे करने का यहाँ पे मौका मिलता है और मुझे पूरी आज़ादी रहती है, मुझे पूरा फ्रीडम है, मुझे बहुत सम्मान देते हैं। ये सब बच्चे हैं हमारे जो छोटे हैं, सब हमेशा मुझे बोलते हैं कि आप कुछ करना चाहते हैं, आप हमें बताया करें, तो वो पूरा भी होता है। और आज भी हम इस के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि बच्चों की जो तैयारी है आप सब देखेंगे, बहुत ही सुंदर ढंग से हमने उसको किया है और टीचर्स ने मिलकर के, तो वो आपके सामने आने वाला है, आप ज़रूर देखिएगा। बहुत अच्छा प्रोग्राम तैयार हुआ है। और उसमें कहते हैं कि हम सीना ठोक के कहते हैं, हम सीना ठोक के कहते हैं, आवाज लगा कर कहते हैं, हाथों में गीता रामायण कुरान उठा के कहते हैं। जो चली आ रही सदियों से हम वो अनमोल कहानी है, दुनिया में सबसे सच्चे सबसे अच्छे हिंदुस्तानी हैं। तो आप लोग एक लाइन हमारे साथ कहिएगा हर स्टेंजा के बाद, हम सबसे अच्छे हिंदुस्तानी हैं। हम सबसे अच्छे हिंदुस्तानी। जोर से बोलो, हम सबसे अच्छे हिंदुस्तानी हैं। हम रामचरित मानस भारत में 24 घंटे गाते हैं, काशी मथुरा वैष्णो देवी से अमरनाथ तक जाते हैं। हम गणपत का वंदन करके हर काम सफल कर देते हैं। हम काट अंगूठा गुरुदेव के चरणों में धर देते हैं। हम सूर्यदेव का ज्योत कलश शिव शंकर वाला डमरू है, जिस पर गिरधर नागर नाचे हम वो मीरा के घुंघरू हैं। हम आर्यपुत्र माँ के सुपुत्र, हम आर्यपुत्र माँ के सुपुत्र, संगम तीरथ का पानी है, दुनिया में सबसे सच्चे सबसे अच्छे हिंदुस्तानी हैं। संजय भारती जी हैं जो 2 साल पहले अल्बर्टा हिंदी परिषद से जुड़े हैं। ये हमारे डायरेक्टर हैं, काफ़ी कर्मठ हैं, हमारे प्रोग्राम्स को हमारी हेल्प करते हैं। तो मैं इनसे भी ये पूछना चाहता हूँ जो मैं सबसे सवाल पूछ रहा हूँ कि हिंदी के प्रति जो आपका प्यार है आप कैसे साझा करेंगे सभी के साथ? देखिए, हिंदी के साथ चूँकि नाम में ही मेरे संजय भारती है तो अपने भारत से जुड़ने के लिए, और ये भाषा मेरे दादाजी जो थे हिंदी से आचार्य थे, पीएचडी किए थे, तो उन्होंने कभी हमेशा मुझे इस भाषा से जोड़े रखा। एक एक छोटी छोटी सी बातों पे कौन सी उर्दू की शब्द है, कौन सी हिंदी की शब्द है, इनमें फ़र्क बताना। और जब मैं यहाँ जुड़ा, आपसे मिला, अमित जी से मिला, तो मुझे एक मौका मिला कि मैं अपनी तरफ से जो भी योगदान देख सकता हूँ। बिल्कुल। तो जो हम एनुअली जो भी इवेंट्स करते हैं उसमें मैं
हिस्सा लेता हूँ और बच्चों को इन्वॉल्व करता हूँ। काफ़ी पेरेंट्स जितने भी न्यू आते हैं उनको इनक्रेज करता हूँ कि वो अपने बच्चों को एडमिशन कराएं। और कल्चरल एक्टिविटी के माध्यम से, गाने के माध्यम से, मूवी के माध्यम से जो भी हो सके बच्चों में रुचि पैदा की जाए हिंदी के प्रति, और यू गो फ्रॉम देयर। और हमेशा हम हर माता पिता को यही प्रोत्साहित करते हैं कि जितना हो सके आप अपने बच्चों से मातृभाषा में बात कीजिए, क्योंकि ये जगह जो है यहाँ पे तो वो अंग्रेजी कभी भी सीख जाएंगे लेकिन मातृभाषा छूट जाएगी। तो उस मातृभाषा ना छूटने पाए। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ पे रहने वाले पेरेंट्स को मेरा ये सुझाव है कि आप अपने बच्चों को अभी चाहे तो जितनी चाहे उतनी भाषा सिखा सकते हो, मगर मेरा सवाल ये है कि क्या उन बच्चों के नाना नानी, दादा दादी क्या आज फिर इंग्लिश सीख सकते हैं इनसे संवाद करने के लिए? नहीं, वो मुश्किल होगा। तो हम बच्चों पे ही इंसिस्ट करें कि वो मातृभाषा को सीखें, ताकि वो अपने नाना नानी, दादा दादी के साथ में अपने पूरे भाव को प्रकट कर सकें, वो प्यार बांट सकें और उनके प्यार को समझ सकें। सुख दुख में परिषद को जो चलाया है तो उसके हिसाब से 40 वर्षों की यात्रा, 40 वर्षों का इसमें विवरण तो नहीं है, लेकिन यादों के साथ साथ जो कि हम लोगों ने इसको संजो कर रखा है। Our MLA Shane Getson, who is here. I mean, we are honored to have him represent, this program tonight. It's our 40th celebration of Alberta Hindi Parishad. So it's a language that's loved by everybody in India. So we have all the provinces, they love this language. I mean, it just puts every province together. Like India has got so many different languages, but Hindi is actually one of those languages that basically puts everything together. So is it the third or the fourth? Fourth most, exactly. You're absolutely right. But we just want to ask you, how do you see Hindi as something that can be grown in Alberta? Well, I think Duolingo works out really well. Exactly. Like, honestly, there's a really good Indian community. Again, folks from like myself are not from that descent, obviously, but all of a sudden you start learning a little bit here and there. And if I take my daughters as an example, I mean, they started picking up languages like you wouldn't believe by using Duolingo. So if you can, typically what happens that I see in most times, folks will sit down and they'll have a cup of tea or they'll have a cup of coffee, they'll break some bread, they'll have meals together, and then the next progression from that is learning a little bit of language from each other. So I think that's how it could work out. If you were to learn one word of Hindi today, what would that be? Friendship. Friendship is dosti. So that's a great word. I mean, I know somebody just opened a restaurant named Dosti. So that's a beautiful word. So it's all about mixology. I mean, Dosti is all about friendship. So thank you, Shane, and your last words for the Indian community in Edmonton about this 40th anniversary celebration that we are having today. Yeah, well, congratulations. 40 years is not a small milestone by any means. So all the folks that put in those blood, sweat, and tears over the years, I often say we stand on the shoulders of giants. This is one of those giant events. So it's credits for everybody holding the community together and keeping it going this far. And I got this suit over in India. I've been itching to wear it. I was over there. Yeah, it was great. So we were over there for 10 days, and I got to thank Indra here, Puneet. Who else helped me out in this little corridor thing that we're working on? Please stand up as well. Whoever was involved in this committee in getting it working, Puneet as well. And part of this, politicians, I don't know about you guys, but I get tired of politicians showing up at events. They eat your food, they take some pictures, and then they go on and nothing else happens. And I wasn't raised that way. So my background was projects, it was building things. Puneet and I actually worked at Enbridge for a number of years together. So when I run into people and we have conversations, I want to make sure that there's something we actually do about it. And what I kept hearing was, and what I kept knowing from your community was that you're good-souled people. The dance up there kind of said it. You came under one flag, there's all these divisions that could keep us apart. But between language and culture and food and friends and family, we all seem to come together. When you sit with common, like-minded people, my gosh, we can move mountains. So what I wanted to do is I was taking all this feedback of all the things, people that took a risk and came to Alberta, came to Canada to raise their families, to do these things, and you took me into your friendship to be able to have these conversations.
And I talked about the economic corridors, how they were more than just the economy. It's about connecting good people together. And when we do that, we've got a coalition of the willing, and fantastic things happen when we do that. So I kept getting told, you got to go to India, you got to go to India. And unfortunately, our federal guys kind of messed that up for us. So officially, we couldn't go there because we were concerned that we would cause more of an issue. But as it turns out, Saskatchewan and Alberta were always welcome. We were never sent away. So when we went over there, I also asked my friends, would you also spend some of your own money to go over there? And they did. That's how much they believed in this initiative, and that's how much friendship that we built and what we want to do with India and Alberta. So now officially, we've stood up a council, the India Advisory Council. It is the first of its kind in Alberta, and it's the first of its kind in North America. अब हमारे साथ जुड़े हैं इंद्रनील चौधरी जी, और ये आज रिप्रेजेंट कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ अल्बर्टा को. ही इज़ विद द गवर्नमेंट कॉकस. काफ़ी उपलब्धियां हैं इनकी. मैं आपको ये सब तो अभी नहीं बता सकता, लेकिन इनसे ज़रूर ये पूछूंगा कि इनका हिंदी के प्रति प्यार. और शायद आप लोगों को पता नहीं है, इंद्रनील जी गाना भी बहुत अच्छा गाते हैं और ये किशोर दा के फ़ैन हैं. तो इनसे गाने के तो नहीं कहेंगे, लेकिन इनसे ज़रूर हिंदी का जो इनके प्रति जो इनका प्यार है और आज जो हमारा प्रोग्राम है इसके बारे में ये क्या कहना चाहते हैं, हम सुनना चाहते हैं इनसे. नमस्कार भाई और बहनों. ये तो बहुत सौभाग्य की बात है कि आपने हिंदी के बारे में पूछा, क्योंकि हिंदी तो मेरी फर्स्ट लैंग्वेज है. पला बड़ा हूँ काशी में, तो वहाँ पे हिंदी और हिंदी की ठेठ भाषा ही बोलते हैं. और ये जो भी सेवा अभी कर रहे हैं गवर्नमेंट कॉकस के साथ, वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव है कि हिंदी को और आगे बढ़ाएं. हिंदी तो ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, 5th मोस्ट और 4th मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड है, लेकिन यहाँ पे लोगों को शायद उतनी अवेयरनेस नहीं है. हम तो चाहते हैं कि कहीं पे भी अगर कोई रीजनल लैंग्वेज हो, सबसे पहले हिंदी आए, उसके बाद चाहे कोई भी और लैंग्वेज आए. तो कोशिश जारी रहेगी रोहित भाई. और हम एक रिकग्नाइज़ करेंगे दशहरे के प्रोग्राम में पूरे हिंदी के जो हमारे लीडर्स हैं, और जो बुक्स हम खुद मंगवाए हैं वो भी उसी समय हम करेंगे, लाइब्रेरी को डोनेट करेंगे. थैंक यू सर. थैंक यू. मंत्री का स्वरूप है. ਹੈਲੋ ਦੋਸਤੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ. ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਰੀਅਲਟਰ ਹਰਜੀਤ ਸੰਧੂ, ਮੈਕਸਵੈਲ ਫਲੈਰਸ ਰੀਅਲਟੀ ਦੇ ਨਾਲ. ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਬੰਗਲੋ 158 ਬਲੈਕਬਰਨ ਡਰਾਈਵ ਅੱਜ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਸੋਲਡ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੋਲਡ ਸਾਈਨ ਦਾ ਸਟicker ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ 7802333100. ਥੈਂਕ ਯੂ. Welcome to Mom Memory, your trusted partner for premium bulk products. Located in Alberta, Canada, Mom Memory connects you to a world of high quality, affordable products directly sourced from trusted manufacturers and wholesalers. Whether you're shopping for personal use or B2B needs, we're here to ensure a seamless and efficient supply chain experience. Tech essentials, micro SD cards, flash drives, SSDs, consumer electronics, cell phone accessories, USB chargers, cables, card readers, memory cards, laptop stands, and phones, lifestyle products, perfumes, coffee filters, and premium coffee. As an authorized seller of Snesh, we guarantee authentic products that deliver performance and reliability. Why choose Mom Memory? Exceptional quality, we handpick every product to meet your high standards, customer commitment. Your satisfaction is our priority. Shop confidently with a trusted partner. ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਵਤਨ ਟੀਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਾ? ਹੈਲਥ ਟਿਪਸ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦੇ ਨੇ? ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸੁਝਾਅ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਕਰਨੇ. ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਖਰੀ ਗੀਤ ਸਾਡੀ ਚੁੰਨੀ ਨੂੰ ਲਵਾ ਦੇ ਗੋਟੇ ਵੇ ਅਸਾਂ ਕਿਹੜਾ
ਚੰਨ ਮੰਗਿਆ। ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਅਰਪਣ ਸੰਧੂ ਤੇ ਤਨਵੀਰ ਸੰਧੂ ਦੀਆਂ, ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਹੈ ਜੀਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਪਾਣੀ ਆਵੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਸਹੀ, ਰਾਣੀਆਂ ਚਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਆਵੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਸਹੀ, ਤਾਂ ਉੱਡ ਪਰਦੇਸੀ ਜਾਣੀਆਂ ਤੂੰ ਖਾਬ ਥੋੜੇ ਬੁਣਦੇ ਸਹੀ, ਜੇ ਨਾ ਚੁੰਨੀ ਨੂੰ ਨਵਾ ਦੇ ਗੋਟੇ ਵੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ